آج یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا لاسٹ سرمن ہوگا، اس کے بعد ہم دوسرے عام خط کی طرف بڑھیں گے۔ اور آج جو ٹاپک ہے وہ ہے 3 authentic tests، 3 امتحانات یا 3 امتحان جو کہ ہر مسیحی کی زندگی میں ہونا ضرور ہے۔ اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جب میں مسیح میں آ گیا ہوں تو اب میرا ٹیسٹ کوئی نہیں ہوگا۔ ٹیمپٹیشن تو باڈی جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے، جو آزمائش ہے وہ باڈی آپ کی دیتی ہے یا ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن امتحان جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹیسٹ، آپ کا ایمان ٹیسٹ کیا جاتا ہے، آپ کی زندگی کے اوپر جو یسوع مسیح کا فضل ہوا ہے اس کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، آپ کی خدمت کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم 3 ٹیسٹ دیکھیں گے جو کہ کسی خادم کی زندگی میں اور کسی ایماندار کی زندگی کے اندر ہونے ضرور ہیں، اور جب آپ ان کے بارے میں سیکھ جائیں گے تو you will know that you are not failed but you are passed۔ کیونکہ جو شخص چلتا رہتا ہے خداوند میں، جو شخص گرتا اٹھتا سنبھلتا اور پھر چلنا شروع کرتا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے اور خداوند اس کو بہت برکت دیتا ہے۔ لیکن جو شخص گرا رہتا ہے وہ کبھی بھی برکت نہیں پا سکتا۔ خداوند اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور پھر چلانا شروع کرتا ہے، اور جو اس کے ممسوح ہیں ان کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے دائنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے انہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، کسی کو رتھوں کا بھروسہ ہے، لیکن ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے، کیونکہ وہ تو جھکے اور گر پڑے، ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند امتحانات میں سے گزارتا ہے تاکہ آپ کو نیکسٹ لیول عطا کرے۔ نیکسٹ لیول کے لیے ضروری ہے کہ امتحان میں سے پاس ہوا جائے۔ ٹیسٹ اس چیز کی نشاندہی ہے that you have the knowledge, you know many things and now the test is there for you۔ آپ کو نالج ہو گیا ہے، آپ کو چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ علم ہو گیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ضرور ہے، اور جو شخص اس ٹیسٹ کو پاس کر جائے گا اس کے لیے ایک نیا جو ہے مکاشفہ، ایک نئی امید، ایک نیا سٹیپ اور ایک نئی کامیابی انتظار میں ہوگی۔ ہاللیلویا۔ آج ہم دیکھیں گے 3 ٹیسٹ کیا ہیں۔ آج میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے پہلا یوحنا اس کا 5واں باب، اس کی پہلی 5 آیات، جلدی سے پڑھیں۔ پہلا یوحنا 5واں باب، اس کی پہلی 5 آیات۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ آمین، آمین۔ بہت خوبصورت پیسج ہے، اور اسی کے اندر سے ہم دیکھیں گے کہ وہ 3 ٹیسٹ کیا ہیں۔ پہلا ٹیسٹ آف بلیف، ایمان کا امتحان۔ آپ کہیں گے جی میں تو خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میں تو پاجی بہت بڑا فین ہاں یسوع مسیح دا، دیوانہ ہاں دیوانہ ہاں دیوانہ ہاں، میں تو یسوع نا دا دیوانہ ہاں۔ بڑے گیت گائے جاتے ہیں، ڈانس کیے جاتے ہیں، بڑی
जो है वो जोश और खरोश के साथ जो है वो साबित करने की कोशिश की जाती है दैट वी हैव बिलीफ, हम ईमानदार हैं, हमारा ईमान खुदा के ऊपर है। लेकिन इसी ईमान की आजमाइश भी होना जरूरी है, और जब आजमाइश होती है तब वाहवेला होता है, तब गम होता है, तब आहो नाला भी होता है, क्योंकि ईमान जो है जब उसको आजमाया जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन उस तकलीफ के बाद खुदाबंद अपने लोगों को जो सरफराजी देता है वो बयान से बाहर है, बहुत बड़ी सरफराजी देता है। डोंट एवर थिंक कि आपका दुश्मन जो है आप पर जुल्म करेगा आपके ईमान के लिए, आपके ईमान के ऊपर आप पे जुल्म कर कर बच जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ईमान में कायम हैं और खुदावंद आपके अंदर मौजूद है और आप ईमान में मजबूत हैं, जिसको आगे जाकर हम देखेंगे कि ईमान में मजबूती क्या होती है। अगर आप ईमान में मजबूत हैं, आपका दुश्मन चाहे कितना भी जालिम और जुल्म करने वाला क्यों ना हो, वो हमेशा शर्मिंदा होगा, और खुदावंद आपको आपके दुश्मनों के रूबरू आपके आगे दस्तरखान बिछाएगा। इस मुल्क के अंदर हमने ये देखा है, हमारी एक बस्ती जलाई जाती है, उसके बाद क्या होता है, खुदावंद अपने लोगों को सरफराज कर देता है। इन्हीं लोगों के सामने जिनके जो हमें जलाते हैं, मारते हैं, बर्बाद करते हैं, जब ये हमारे ईमान की आजमाइश करते हैं, खुदावंद हमें और ऊपर लेकर चला जाता है। इनकी आंखों के सामने हमें सरबुलंदी अता करता है। ये है हमारा खुदा और हमारा ईमान। और जब हम इस ईमान में बढ़ते हैं तो खुदावंद बरकत देता है। आमीन। कुछ चीजें हैं ईमान की आजमाइश के अंदर। पहली चीज, बिलीव इन जीसस, यीशु मसीह पर ईमान बहुत जरूरी है। हम यीशु पर ईमान रखते हैं, लेकिन किस तरह यीशु पर ईमान रखते हैं, किस चीज का इम्तिहान है? यीशु पर ईमान लाना इम्तिहान है या कुछ और है जिसका इम्तिहान होना है? यह है जरूरी जानना। हम सब कहते हैं जी ये मैं यीशु पर ईमान रखना। आप में से कितने यीशु पर ईमान रखते हैं? बट वाई, हाउ, किस यीशु पर ईमान रखते हैं? वो कौन सा यीशु है जिस पर ईमान रखते हैं आप? अगर तो आप ईमान रखते हैं कि ही इज एज अ क्राइस्ट, वो मसीह है, वो मसा किया हुआ है, वो गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया गया है, वो गमज़दों को तसल्ली देने के लिए मसा किया गया है, वो शिफा देने के लिए मसा किया गया है, तो फिर इस ईमान की आजमाइश होनी जरूरी है। किस ईमान की आजमाइश? बिलीव इन जीसस एज अ क्राइस्ट, यीशु मसीह को मसीहा जानते हुए आजमाया जाना। जब आप ईमान रखते हैं कि वो खुशखबरी के लिए आया है, और जब आप उस खुशखबरी से वाकिफ ही नहीं, आप खुद खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ईमान की आजमाइश हो रही है। आप मुनादी तो करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, शादमान हूँ, लेकिन खुशी चेहरे पर नहीं होती। मैंने पाकिस्तान के 90% मसीहों को देखा है कि उनके चेहरों पर खुशी नहीं होती। अब तो मैंने अपने चर्च में भी कहना बंद कर दिया है कि हंसो, स्माइल करो। When you are in Christ, the joy of the Lord covers you from all over. खुदावंद की खुशी आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। There is no disappointment, there is no stress when you are in Christ. Christ है वो, मसीहा है वो, खुशखबरी देने वाला मसीहा, निजात देने वाला मसीहा, बीमारियों से आजाद करने वाला मसीहा। और आपको आकर कोई कहे पादी साहब ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ। This is called a test.
A test of your belief. A test of your belief. Test belief as a son of God. यीशु मसीह पर ये ईमान रखना कि वो खुदा का बेटा है और वो बदन लेकर आया है। इन तीनों चीजों को खुदा आपके ईमान की आजमाइश जो है वो करता है, इम्तिहान लेता है। खुदा यीशु मसीह born from God. He is incarnated word of God, creator of everything. When you believe it, जब आप इस चीज पर ईमान रखते हैं तो जहन में रखें कि इस ईमान की आजमाइश भी हो सकती है। There might be challenge कि यीशु मसीह क्रिएटर नहीं है, यीशु मसीह कलमा खुदा नहीं है, यीशु मसीह मुजस्सम कलाम नहीं है। बहुत सारी तालीमें ऐसी आएंगी, वो कहेंगे कि यीशु मसीह तो आम इंसान है, एक आम इंसान, उसने आम तालीम दी है। कन्फ्यूशियस ने तो ये तालीम दी है, उसने भी ये तालीम दी है, बुद्धा ने भी, यीशु ने भी ये तालीम दी है। दैट इज टेस्ट ऑफ योर फेथ। अगर कलाम आंदा होएगा ना तो जवाब भी आंदा होएगा। यीशु मसीह जब आजमाया गया तो आजमाने वाले ने कलाम को इस्तेमाल किया था, तो यीशु ने जवाब क्या दिया? ये भी लिखा है। हाँ क्या कि इंसान रोटी से ही जीता ना रहे, ये भी लिखा है। हाँ ये भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश, ये भी लिखा है। हालेलुया। इन चीजों पर भी आप आजमाए जा सकते हैं। और टेस्टिमनी इन लाइफ, आपकी गवाही के ऊपर भी इम्तिहान हो सकता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी गवाहियां रखते हैं और जब वो गवाही देते हैं तो लोग उन्हें जज करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज पीपल डोंट सी दैट टेस्टिमनी फिट इन देयर लाइफ। आज बहुत सारे लोग स्टेज पर खड़े होकर गवाही देते हैं, लेकिन वो टेस्टिमनी उनके फेथ के ऊपर फिट नहीं आती। दैट मीन्स इट इज नॉट मैच्ड। यू मस्ट मैच योर टेस्टिमनी विद योर लाइफ। अगर गवाही है वैसा नजर भी आए। हाँ जी, अगर आप कहते हैं जी मैं निजात पा लेती है, मैं चेंज हो गया, तो चेंज नजर आना, ट्रांसफॉर्मेशन नजर आनी चाहिए। आपके अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नजर आनी चाहिए। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, अगर तब्दीली नहीं है, तो इसका मतलब है ईमान नहीं है। टेस्ट हो सकता है, इसको टेस्ट किया जा सकता है कि आपकी गवाही ठीक भी है कि नहीं है। चेंजिंग लाइफ, इटर्नल लाइफ की गवाही, हमेशा की जिंदगी आपके पास है। अगर हमेशा की जिंदगी है तो मुंह बुसिया नहीं रहा होगा, बिकॉज यू हैव नो फियर ऑफ लूजिंग योर दिस लाइफ। आपको कोई इसका डर नहीं, अगर आप मर भी जाएं, मौत का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मौत का इख्तियार नहीं है। योर इटर्नल लाइफ कैन बी टेस्ट। हमारे ईमान की आजमाइश क्या करती है जी? आगे करेंगे, पढ़े जरा। पाकलाम में से याकूब का खत 3 बाब 1-4 है। तू इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आमीन आमीन। ईमान की आजमाइश क्या करती है जी? पेशेंस। क्या लेकर आती है? सब्र पैदा होता है। कि इम्पेशेंस होती है कि उठ पैदा है, हाँ इन्हें मेरे लिए गल क्यों कर देती, इसने मेरी खिदमत के ऊपर क्यों उंगली उठाई। ये होता है? नहीं। क्या है? तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या करती है? सब्र पैदा करती है। और क्या लिखा है? सब्र को अपना काम क्या करो? पूरा करने दो ना। एंड उतावले ना हो,
If you have ministry, God prove your ministry by himself. You don't need to prove yourself. आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि आपके पास खिदमत है, खुदा प्रूव करेगा कि आपके पास खिदमत है। आमीन। आपका किरदार प्रूव करेगा कि आपके पास खिदमत है, आपकी जाफिशानी प्रूव करेगी कि आपके पास खिदमत है। यू विल बी अवेलेबल, जैसे मैंने उधर भी बताया था, अवेलेबिलिटी आपकी प्रूव करेगी कि यू आर फ्रॉम गॉड। मुझे याद अभी तक जब मैं खिदमत में आया, शुरू में, अभी खिदमत प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई थी, तो मैं दरियां भी बिछाया करता था, कुर्सियां भी लगाया करता था, साफ भी किया करते थे। मीटिंग से पहले आकर एक खादम का बेटा होने के बावजूद मैंने अपनी खिदमत दरियां बिछाने से शुरू की है, कुर्सियां साफ करने से शुरू की है। अभी तक क्रिश्चियंस को जूतियां रखनी नहीं आई, तो मेरी ड्यूटी वहां से शुरू होती थी, और खुदावन ने वहां से उठाकर शाही कहानों के फिरका में शामिल किया है। इफ यू वांट टू, अगर आप खिदमत में हैं, आना चाहते हैं, करना चाहते हैं खिदमत, then you have to commit yourself for the ministry। इधर से शुरू करें। सबसे बड़ी खिदमत ये है, दरियां तो, हाँ जी, पानी तो, खादमा दी खिदमत, खुदा दे लोकां दी खिदमत, चर्च में आने वाले लोगों की खिदमत, ये है खिदमत। मुझे बड़ा अच्छा लगता है थॉमस साहब, अब मैंने इन्हें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है, नहीं तो ये बच्चे की खिदमत कर रहे होते थे, यहाँ पे पानी भी दे रहे होते थे, बच्चों की खिदमत, मैंने इन्हें थोड़ा सा रिजर्व किया। दैट स्टैंडर्ड स्टीवर्डशिप, चर्च नीड्स स्टीवर्डशिप। आप कर सकते हैं ऐसे, खादम के लिए कोई मसला नहीं है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं। आमीन। तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या करती है जी? सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। पूरे और कामिल हो जाओ। मैं शारजा में था, एक बहुत बड़े चर्च में, एक औरत मेरे पास आई, ने कहा जी मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ, आपने मैसेज दिया कि आप कामिल हो सकते हैं, आप परफेक्ट हो सकते हैं। मैं कहती हूँ हम परफेक्ट नहीं हो सकते। मैंने कहा जी हम परफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि खुदा कहता है कि परफेक्ट हो सकते हैं, मैं नहीं कहता, खुदावंद कहता है कि तुम परफेक्ट। When you were nothing, you become righteous। जब तुम कुछ ना थे, खुदा ने तुम्हें रास्तबाज ठहराया है। हम अपनी मर्जी से जो है कामिल नहीं है, क्योंकि कामिल जब हमारे अंदर है तो हम कामिल हैं। हालेलुया। जब कामिल आता है तो नाकिस जाता रहता है। हालेलुया। डोंट लूज योरसेल्फ। अगर कभी कोई मसला भी हो जाए, गुनाह में भी चले जाएं, you still have hope that somebody is taking care of you, that is Jesus Christ। इब्लीस कोशिश करेगा, नहीं 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 नहीं, तेरे को तो बड़ा मसला हो गया, खुदा तेनू कबूल ही नहीं करेगा। नो, God always waits for you। खुदा हमेशा इंतजार करता है, वो अपनी बाहों को फैलाए हुए अपने बेटे की तरफ देखता है, रोज उठता और देखता है कब मेरा बेटा मेरे पास आ जाता है। आमीन। तुम कामिल हो जाओ और पूरे हो जाओ, और तुम में किसी बात की कमी, आमीन, हालेलुया, किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईमान की आजमाइश जब होती है ना, खुशी किया करें, क्योंकि ये तो हमें ऊंचा उड़ाने के लिए है। हालेलुया।
क्या है? तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ऐ अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हालेलुया। There is no test that righteous man cannot fulfill. अगर आप रास्तबाज हैं, कोई भी इम्तहान आपके लिए इम्तहान नहीं है। हालेलुया। सब कुछ आपके लिए मुमकिन है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, टेस्ट ऑफ लव, मोहब्बत का इम्तहान। ये वो बड़ी मोहब्बत नहीं जी कुड़ी मुंडिया नूं हुंदी है, नहीं। उस मोहब्बत का इम्तहान फर्क होता है। तुमने मुझे बैलेंस नहीं डलवा के दिया, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, ये उस तरह का इम्तहान नहीं है। आज तुमने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा, दिस इज द टेस्ट। दिस इज वो टेस्ट नहीं है। साढ़े वारी तो मोबाइल ही नहीं सी हुंदा, इसलिए टेस्ट ही घट सा। आजकल के बच्चों का ज्यादा मसला है, उन्होंने टेस्ट ही बड़े ने, हर रोज नवी टेंशन होती है। आज उनका मैसेज नहीं आया मुझे। व्हाट इज लव? ओबीडियंस इज लव। आप कहेंगे ये केहू जा लव है? इस ईमान की आजमाइश होनी है, इस ईमान का इम्तहान होना है भाई साहब। इसमें क्या है? ओबीडियंस। पहला यूहन्ना 5:2-6 आयत। हाँ, जो कि उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई। एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? जो उसके कलाम पर अमल करे। सिर्फ पढ़े ना, हाँ जी, हाईलाइटर नाल उते निशान सिर्फ ना लाए, तो टैगिंग ना करे ग्रीन प्रीन ट्रीन है। मैं वेख्या पादरियां दी बाइबलां एडियां मोटियां ते जिंदगी च कख भी नहीं। खोलणगे ते इंज लगेगा दुनिया दे सब तो वड्डे आलम ने, ते प्रैक्टिकल लाइफ नथिंग। क्या लिखा है? जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें क्या है? खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। बगैर अमल कीते नहीं। मोहब्बत कामिल तब होगी जब ओबीडियंस होगी, जब कलाम पर अमल किया जाएगा। और अगर कलाम पर अमल ही नहीं किया जाता तो मोहब्बत कैसी? दिखावा 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 हो सकता है, मोहब्बत कामिल नहीं हो सकती। ओबीडियंस इज इंपॉर्टेंट। आगे क्या? हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। हाँ जी, किससे? अमल करने से। डिग्री लेना नहीं, मोटी बाइबल रखना नहीं, हाँ जी, बाइबल नू इत्थे रख के चलन नाल नहीं, सोनी टाई पा के अच्छे बच्चे बन के स्टेज पे चढ़न नाल नहीं। किससे? कलाम पर अमल करने से मालूम हो जाएगा कि हम उसमें हैं। इसकी आजमाइश होनी है, इस मोहब्बत की आजमाइश होनी है, इस ओबीडियंस की आजमाइश होनी है। ये है इम्तहान जो खुदा लेता है। आर यू ओबेइंग हिज वर्ड और नॉट? सॉरी, मैं चल फिर के बहुता कलाम सुनाना, किसी नूं प्रॉब्लम तो नहीं? वो फेसबुक वालियां नूं प्रॉब्लम है। मैनू लिखते ने, पाजी साहब किते खलो भी जाया करो। भाई मैं खलोवा क्यों? रूल को दसंदा रहे, जो वो खलो जाएगा तो मैं भी खलो जाऊंगा। ये रूह है जो हमें मुतहरक रखता है। हालेलुया।
जो कोई कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता है। नो मोर गॉस्पेल, नथिंग एल्स। जो कोई कहता है कि क्या है वो उसमें है, तो फिर उसी तरह चले। नफरत रख के लोगों ਲਈ, अदावतां रख के लोगों ਲਈ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਰੋਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਾਕ रूह नहीं है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ खिदमत नहीं है, जो मोहब्बत नहीं रखता। ग्रज रखने वाला शख्स, दूसरों के लिए नफरत रखने वाला शख्स, अगर कोई कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। वो सलीब पर लटका हुआ था और यहूदियों ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਿਲ ਗਈ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਸਲੀਬ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੂਲੀ। ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਗਰਜ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ? फिर क्यों तू नफरत रखता है? फिर उसकी तरह क्यों नहीं चलता जैसे वो चलता था? दैट इज योर टेस्ट। ये है तुम्हारा इम्तिहान। अगर तू कहता है कि मैं उसमें हूं, तो उसकी तरह चल भी। मोहब्बत रख। वो तो कहता है बाप इनको माफ कर दे। क्या तूने कभी ऐसा किया? नहीं। जब तू किसी के घर में जाता है जिससे तुझे अदावत है, तो उससे मिलता भी नहीं है। तो उससे मिलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर अदावत है, बुग़्ज़ है, पाकीज़गी नहीं, नापाकी भरी पड़ी। तू कहता है मेरे अंदर रूह कुदस है, लेकिन तेरे अंदर रूह कुदस नहीं है। तू जितनी भी गैर जुबानें बोल ले, तेरे अंदर रूह कुदस नहीं है। क्योंकि रूह कुदस जो है वो मोहब्बत देता है, मोहब्बत उसके अंदर बसी है, तरस है उसके अंदर, क्योंकि वो खुदाबंद का रूह है। हालेलुया। अगर तू कहता है कि मैं मसीह में हूं, तो मसीह की तरह चल भी। अगर मैं आदमी हूं और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, बोलो बोलोगे? ऊंची बोलो। तो क्या है तू? रेवरेंड डॉक्टर है, प्रॉफिट है, एवेंजलिस्ट है, सीनियर पास्टर है? नहीं। तू क्या है? ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ है। आमीन। दिस इज द टेस्ट ऑफ योर फेथ एंड द टेस्ट ऑफ लव। खुदा आजमा रहा जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ। हाँ, खुदा देख रहा है कि तुसी आपस में कितनी मोहब्बत रखते हो। पादरी दूसरे पादरी ने कितनी मोहब्बत रखता है। एक चर्च के लोग आपस में कितनी मोहब्बत रखते हैं। एक ग्रैंड फैमिली के लोग किंज एक दूसरे नाल मोहब्बत रखते। इफ यू आर इन क्राइस्ट देन यू मस्ट वॉक लाइक हिम। तुम्हें उसकी तरह चलना जरूर है। दूसरी चीज, ब्रदरली लव। पहला यूहन्ना दूसरा बाप उसकी 5वीं आयत। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। की कहते हैं जी? खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो हाँ जी, इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। आमीन। आज थोड़े ही ने किए, थोड़ा ग्रुप था सिर दे विच। अगर तू खुदा से मोहब्बत रखता है और उसके फर्जंदों से क्या करता है?
नफरत रखता है, तो तू खुदा से भी मोहब्बत, तो खुदा के फर्जंद कौन है? हर वो शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो खुदा का फर्जंद है। हर शख्स, हर ईमानदार, क्योंकि उसने हमें फर्जंदियत अता की है ईमान के वसीला से। हालेलुया। हमें यह हक बख्श दिया कि हम उसके फर्जंद कहला सके। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, किन्ने रख देने खुदा नाल मोहब्बत? वेख्या सारे हाथ खड़ा करना। हुण यह दसो कि आपस च केड़े केड़े मोहब्बत रखते हैं? अगर तुम खुदा से मोहब्बत रखते हो तो उसके फर्जंदों से भी मोहब्बत रखो। आमीन। अच्छा है दाऊद साहब? अक्सर आमीन। टेस्ट ऑफ लव आपका हो रहा है। खुदा इम्तिहान ले रहा है ताकि आपको क्या करे? एक स्टेप ऊपर लेकर आए, एग्जॉल्ट करे, खिदमत को बढ़ाए, खिदमत में स्टेबिलिटी दे। खुदावंद मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। आगे बढ़ते हैं, खुदा के कलाम में से देखें, ज़बूर पाकलाम में से ज़बूर 7 उसकी 11 ता 19 आयात। खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुँचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आँखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि जत्थे के टपकों से भी शीरी हैं। नीज़ उनमें से तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का बड़ा अजर है। आमीन। अजर बड़ा है। Obedience is greater than anything else, and in obedience you must love. अगर कोई मोहब्बत नहीं रखता तो वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ है। तीसरी चीज, तीसरा इम्तिहान, टेस्ट ऑफ टेस्टिमनी, आपकी गवाही का इम्तिहान होता है। 3 चीजें हैं इसमें। पहली चीज, आपके अंदर ये गवाही है कि यू हैव एवरलास्टिंग लाइफ, आप में हमेशा की जिंदगी है। हाँ जी, इसका इम्तिहान होगा। यू आर क्लेमिंग दैट यू हैव एवरलास्टिंग लाइफ, इम्तिहान होगा इसका। यू आर क्लेमिंग दैट एवरलास्टिंग लाइफ इज इन क्राइस्ट, इसका भी इम्तिहान होगा। ये टेस्टिमनी है ना, ये हमारी गवाही है। इस गवाही का भी इम्तिहान होगा, टेस्ट किया जाएगा कि वाकई एवरलास्टिंग लाइफ यीशु मसीह में है कि नहीं। जब हम अपनी जिंदगी से इसका इजहार करेंगे, हमारी जिंदगी से जिंदगी के सोते फूट निकलेंगे। हम किसी पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएगा, हम किसी को छुएंगे तो वो जो है वो ताजा दम हो जाएगा, रूह कुदस से भर जाएगा, मोजज़ात होंगे, अजीब काम होंगे। दैट मीन्स यू हैव लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ, बिकॉज यू आर इन क्राइस्ट। When you are in Christ, you have everlasting life. अगर ये काम नहीं होंगे आपकी जिंदगी में तो that is your test. फिर आजमाने वाला आके कहेगा, तू कहना तेरे अंदर जिंदगी हमेशा दी जिंदगी है, दिखा कित्थे हमेशा दी जिंदगी। बट खुदा के कलाम में लिखा है, who has son has an everlasting life. जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। प्रूव करें, that is your test. Don't stop. खुदावन से मांगे, खुदावन मैनू एवरलास्टिंग लाइफ दा मसा दे, मेरे को है वे, मैनू नेमत दे, मैं लोकां लई भलाई कर सका, दुआ करा तो शिफा पा जान,
صرف شفا تک محدود نہ رکھو, معجزات منگو بڑے بڑے. ہاں جی, اندھی آنکھیں کھل جائیں, بہرے کان کھل جائیں, زبان بولنا شروع ہو, لنگڑے چلنے شروع. دس از ایور لاسٹنگ لائف. شو یور ایور لاسٹنگ لائف. خادموں کے لیے اسپیشلی دس از اے ٹیسٹ آف یور ٹیسٹمنی. آپ کہتے ہیں یہ سنیا کتا, ویئر از Jesus Christ in you? If you have everlasting life, you must have Son of God. اور اگر Son of God ہے تو پھر معجزات کیوں نہیں ہیں, پھر بڑے بڑے کام کیوں نہیں ہیں؟ اگر خدا کا بیٹا آپ کے اندر ہوگا, ایور لاسٹنگ لائف آپ کے اندر ہوگی, پھر معجزے بھی ہوں گے, بڑے کام بھی ہوں گے, ڈیلیورنس بھی ہوگی, ساری نعمتیں آپ کے اندر سے آپریٹ کر رہی ہوں. This is a test. بہت سارے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. اگر میرے پاس زندگی ہے تو میں کسی کو بھی زندگی دے سکتا ہوں. آمین آمین. پڑھیں ذرا خدا کے کلام سے پہلا یوحنا 5واں باب 11ویں اور 12ویں آیات. اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی. ہاں جی. اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. ہاں جی. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. آمین آمین. ہاللیلویا. تیار ہیں؟ پینٹری سا تیار ہو؟ آپ کس فیز میں سے گزر رہی ہیں؟ ٹیل می. ٹیسٹمنی کے امتحان. پادری صاحب آپ کس فیز میں سے گزر رہے ہیں؟ محبت کے امتحان میں سے. آپ ٹیسٹمنی. یو ہیو گیون ہولی اسپرٹ. چاہتا ہوں کہ تمہارا دوسرا مددگار آسمان سے تمہیں بھیجوں. وہ کیا کرے گا؟ He will help you in your test. کیا کرے گا جی؟ کرے گا. جب فیتھ کا امتحان ہوگا تو روح القدس تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کہنا ہے. ہاللیلویا. جب محبت کا امتحان ہوگا تو روح القدس تجھے بتائے گا کہ تو نے کیا کرنا ہے. جب تیرے گواہی کا امتحان ہوگا تو روح القدس تجھے بتائے گا کہ تو نے کیا کرنا ہے. اس لیے روح القدس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. زوردار تالیاں. ایمین. بھائی صاحب سواد آیا؟ ہاللیلویا. تسی کہو گے سارے نو پوچھیا تسی کیڑے امتحان چ. ہاللیلویا. وہ آپ کے اندر سے بہے گا اور خدا کے جلال کی ندیاں آپ کے اندر سے جاری ہو جائیں گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. آمین. آئے سب کھڑے ہو جائیں اور خدا ان کی شکر گزاری کرنا شروع کریں.